Hello everyone, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel. So in today's video, we're gonna be discussing about the most frequently asked question, that is NCRT enough for our preparations as well as selection. In this video, we're gonna be talking about this, but before that, please don't forget to hit that subscribe button below. And now without any further ado, let's get started. Part number 1. So firstly, let's see that what is the thing that causes this confusion in your mind and what is the problem. मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आती है जिससे आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एनसीईआरटी इनफ है या फिर नहीं. सो फॉर दैट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है. द क्वेश्चन इज विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ Leberkuhns secrete antibacterial lysozymes. The options are firstly the Paneth cells, the second one option number B is zymogen cells, the C is Kupffer cells, and the D option is Argentifin cells. Take your time and just give me the answer, and I want your answer from each and every one of you in the comment section below, or you can write in the chat box too. So what you have to do is you have to answer it without seeing or without searching on Google. So did you able to answer this question or not? And if not, I want to ask you several different things too while what you do while studying. So you know what, the answer was Paneth cells, that is option number A. अब this thing is not given. So question ये था कि Argentifin cells, Paneth cells या फिर Kupffer cells, इनमें से कौन सी ऐसी cells है जो क्रिप्ट्स ऑफ Leberkuhns में प्रेजेंट है और जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सीक्रेट करती है. So the answer lies in the option, or that is the Paneth cells. And what we have discovered is that कि NCERT में आप लोगों के पास विलाई का डायग्राम है. विलाई के डायग्राम में आपको क्रिप्ट्स ऑफ Leberkuhns की लोकेशन दी गई है. दे हैव नॉट मेंशन्ड इट, बट डू यू नो दैट द क्रिप्ट्स ऑफ Leberkuhns कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड दीज सेल्स आर Paneth cells एंड Argentifin cells. और जो थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर C, Kupffer cells, ये लिवर में प्रेजेंट होता है. सो देर आर सेवरल डिफरेंट थिंग्स, और ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, बट दे हैव मेंशन द क्रिप्ट्स ऑफ Leberkuhns, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी अराइजिंग है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जैसे ही हमें जैसे Kupffer cells, लिवर की सेल्स, या फिर हमें सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में आ रहा है, तो जैसे ही ये सारी चीज़ें जो हमें लग सकता है या फिर जो इम्पोर्टेंट या अलग से लगती है थोड़ी सी, और ऐसा लगता है कि अगर ये क्वेश्चन में आया तो कैसे बनेगा. सो फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और दीज टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज़ गिवन इन द एनसीईआरटी, आप लोगों को थोड़ा सा गूगल सर्च कर सकते हैं. जैसे कि जब आप सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं तो आप ये पता कर सकते हैं कि पैराटॉइड ग्लैंड से ही मम्स होता है. अगर आप सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं तो उनकी क्या क्या डक्ट्स हैं, आप ये पता कर सकते हैं. And the second source of doing this is revising the previous year question papers. So what you have to do is कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, अगर आप वो क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, सो यू विल बी एबल टू गेट टू नो दैट कौन से चैप्टर्स में ज़्यादा फोकस किस पॉइंट पे किया गया है या कौन से सब टॉपिक या टॉपिक पे किया गया है. सो आफ्टर डूइंग दैट यू कैन सर्च अबाउट द क्वेश्चंस, और उनसे रिलेटेड जैसे अगर वॉर्टन्स डक्ट की बात की गई है तो मैं और भी अदर सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स के बारे में सर्च करूँगी. So what you have to do is you have to give little extra efforts, and you don't need any question subscription or anything like that, only till you don't want it, which means कि ये सारे courses आपको help कर सकते हैं because they will provide you the guidance, they will provide you the study material, but you can do it without anything too. So there is possibility कि आप बिना किसी subscription, बिना किसी course या बिना किसी extra reference या extra refreshers की help से भी आप अपना selection करवा सकते हैं. So NCERT is sufficient, but with that you have to give at least little extra efforts for getting the complete marks. So what you have to do is while reading your NCERT, you have to focus on understanding it too. So please NCERT को एक नॉवल या फिर एक किसी स्टोरी बुक की तरह आपको रीड नहीं करना है. और आप कोई भी चीज़ को सिर्फ तब माना जाएगा कि वो आपको सारी चीज़ें पता हैं जब आप उसको बिना देखे लिख के या फिर किसी को एक्सप्लेन करके या फिर खुद ही कैमरा के सामने एक्सप्लेन करके दिखाएंगे. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर NCERTs, एंड देन ओनली यू कैन सर्च फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. अब बात आती है कि ऐसे कौन सी चीज़ों का हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सर्च कर लें. सो फॉर दैट
जो भी वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में एक बार में नहीं आती है, आपको उसमें थोड़ी सी गूगल की या यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी अदर थिंग. सो द मेन पोर्शन इज़, और व्हाट आई वांट टू डिस्क्राइब यू इज़ दैट कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं. इट मीन्स कि एनसीईआरटी की कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन वो लोग आपसे लेंगे और प्लस आपको थोड़ा सा उसमें चेंज करके और सिचुएशन को चेंज करके वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. अब डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के तो देंगे नहीं जो आपकी बैक एक्सरसाइज में अवेलेबल है. सो व्हाट दे विल डू इज दे विल जस्ट टर्न दिस क्वेश्चन anything like that you will feel that this question is not from NCERT. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ कि जैसे ही आप जब पढ़ाई कर रहे हैं और एक चैप्टर को रीड कर रहे हैं, सो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ उसको सिर्फ रीड करने नहीं, उसको समझने पे ध्यान दीजिए. दिस मूव्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is that how are you reading your NCERT, and I want to ask you this very seriously and I want your answers too. तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप NCERTs को कैसे रीड करते हैं. Hey, but I want to let you know is कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे. मोस्टली क्वेश्चन जो है नॉर्मली एनसीईआरटी में जितनी इन्फॉर्मेशन मेंशन है उसी से आते हैं. सो 90 to 95% क्वेश्चन और शायद इससे भी ज़्यादा एनसीईआरटी से बनते हैं. बस कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा एफर्ट कैरी करते हैं. सो फॉर दैट, फॉर गेटिंग or for making this difference of selecting from 80 to 90 marks, you have to make that extra effort and you have to search on Google, or you can take help with the Google too. Please give your complete attention to not just reading the NCERT but understanding it too. And the conclusion is कि आपको कुछ processes पे ध्यान देना है, and please make sure that आप NCERT read जब भी कर रहे हैं तो एक procedure या एक किसी तरीके से कर रहे हैं. एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट लॉट मैनी टाइम्स इन माई सेवरल वीडियोज. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन अबव ऊपर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, फर्स्टली आपको एनसीईआरटीज़ को अच्छे से रीड करना है, समझना है. सेकेंडली उसको बोल कर या लिख कर देखिए, तभी माना जाएगा कि वो चैप्टर या वो सब्जेक्ट आपका ईजिली अवेलेबल है और आपको अच्छे से याद है, ये समझ में आया है. द थर्ड इज़ थोड़ी सी एक दो चीज़ें आप उन टॉपिक से जो कि थोड़े से अजीब लग रहे हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं. सो मेनली द थिंग इज़ कि जो भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, टफ हैं या हमें समझ में नहीं आ रही, फॉर डूइंग दिस, ये भी चीज़ को याद करने के लिए या तो हमें उस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा, और व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम अगर उसी चीज़ से रिलेटेड थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और उसको डीप तक स्टडी करेंगे, देन it is my promise that you will be able to understand that chapter or that subtopic very more clearly than the other ones. So what you have to do is कि जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम या फिर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, सो मोस्टली आप देखेंगे कि क्वेश्चन उसी टॉपिक से ज़्यादा बना होता है. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ प्लीज़ सर्च एंड गिव लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर गेटिंग द कंप्लीट मार्क्स. आफ्टर दैट वॉट यू हैव टू डू इज़ कि एनसीईआरटीज़ पे ही ध्यान दीजिए, यू डोंट नीड एनी अदर थिंग. और मैंने भी एनसीईआरटी से ही रीड किया है, सारी चीज़ें की हैं. मेरे पास बहुत कम टाइम था बट फिर भी आई वॉज एबल टू मेक इट. एंड प्लीज़ जैसे मैं कर सकती हूँ वैसे आप लोग भी कर सकते हैं. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ गिव योर कंप्लीट कंसंट्रेशन टू दीज थिंग्स एंड द फॉर्म्स विल बी अवेलेबल वेरी शॉर्टली, आई थिंक सो. और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है या ऐसा कुछ भी पता चलता है दैट वॉट और at what time your examinations will be happening, I will be getting you, or I will be updating you. So this is Sakshi, that's all for today. Please, you can suggest your topics for the upcoming videos too, and that's Sakshi, this is all for today, and I will catch you in the next video. See you.